السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون؟ کیا حال ہے بھائی؟ ہاں الحمدللہ۔ خیریت ہے نا؟ ہاں الحمدللہ۔ اچھا، یہ بتاؤ آپ نے پھر تحقیق کیا؟ ہاں کیا کیا؟ میں نے بولا آپ تحقیق کر کے کہاں پہنچ گئے؟ ارے آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ فیروز؟ جی جی، ہاں بتائیے۔ میں بول رہا ہوں آپ تحقیق کر کے کہاں پہنچ گئے؟ مستحق بن گئے کیا؟ نہیں، پھر کیا ہو ابھی؟ ابھی تو طالب علم ہے۔ طالب علم بھی یا مقلد ہوگا پھر یا مجتہد ہوگا؟ کیا ہے ابھی آپ؟ یہ بھائی کس جاہل نے کہا کہ جو طالب علم ہے یا تو بھائی وہ مقلد ہوگا یا تو مجتہد ہوگا؟ ہاں دیکھو، مسلمان کی دو کوالٹیز ہوتے ہیں علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ جہاں وہ مجتہد ہوگا یا وہ مقلد ہوگا۔ اگر آپ یہ کس نے کہا؟ بولا کس نے؟ ہم آپ کی بات تھوڑی نہ مانیں گے۔ ہاں میں سنو، میں بتاؤں گا نا بات مکمل کر کے مطلب جب تحقیق کرے گا پورا ایک نہ دن ایک مجتہد بنے گا، نہیں رہے گا، تیسری کوئی اور صورت ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ صورت ہے فتاوی ابن تیمیہ میں دیکھ لو۔ فتاوی ابن تیمیہ کی آپ کے لیے حجت ہے؟ آپ کے لیے حجت ہے؟ ہمارے لیے تو آپ ہیں حنفی مقلد دیوبندی، تو آپ میرے بھائی یا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول پیش کیجئے اور یا تو اشرف علی تھانوی صاحب کی بات پیش کیجئے۔ اچھا، ابن تیمیہ پہ آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہ بھی کہتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی کتاب و سنت کی بات کو ماننا وہ بھائی تقلید نہیں ہے۔ بھائی اسی اگلے کے پیج میں کہتے ہیں جو تقلید کا مطلب جو انہوں نے لکھا ہے نا، مطلب تقلید کا شرعی حکم اور آخری فیصلہ، اسی کتاب میں لکھا ہے کہ تقلید کو عرف عام میں اتباع کہا جاتا ہے، اور تقلید اور اتباع ایک ہی چیز ہے۔ بھائی اشرف علی تھانوی صاحب کے نزدیک بھائی کتاب و سنت کی بات کو ماننا یہ بھائی تقلید نہیں ہے، اور دوسری چیز انہوں نے خود تقلید کی تعریف بیان کی ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے۔ تو تقلید اور اتباع کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ اتباع ہوتی ہے با دلیل اور تقلید ہوتی ہے بنا دلیل۔ رکو ہاں رکو۔ اچھا، آپ بلا دلیل کو بولتے ہو تقلید ہے؟ نہیں، ہم نہیں بولتے، یہ تو آپ کے عالموں نے تعریف کی ہے نا۔ یہ غلط تعریف نا تمہاری۔ میری کون سی غلط تعریف ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو۔ ارے مجتہد آپ چھوڑیے، ابھی آپ نے کہا تھا کہ دین اسلام میں یا تو کوئی طالب علم ہے یا تو وہ بھائی مقلد ہوگا یا تو بھائی وہ مجتہد ہوگا۔ ابو حنیفہ دلائل شریف سے مجتہد ثابت نہیں ہے کیا؟ عمر کی حکمت سے ثابت نہیں ہے کہ وہ مجتہد ہے؟ نہیں۔ کہاں لکھا ہے نہیں ہے؟ ارے آپ نے جو دعویٰ کیا پہلے اس کی تو آپ دلیل دیجئے۔ ہاں میں بولتا ہوں نا، میں بول رہا ہوں مطلب اگر کرو گے فار ایگزامپل آپ تحقیق کر رہے ہیں ابھی تو ایک نہ دن ایک آپ مطلب نہیں، جو ہمارے صحابہ تھے تابعی تھے بھائی وہ کیا تھے؟ مقلد تھے یا وہ سب کے سب بھائی مطلب بھائی وہ تھے کون مجتہد؟ صحابہ تابعی طبع تابعی یہ کون تھا؟ آپ نے دو ہی چیز بتائیے، یا تو مقلد ہے یا تو مجتہد ہے۔ آپ نے بخاری کا حدیث پڑھا ہے؟ بھائی پہلے آپ میرے کو سمجھائیے تو، آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے علامہ بن رہے ہیں، تھوڑا سکھا دیجیے ہمیں۔ میں بول رہا ہوں نا، ہاں میں تیرے لیے علامہ ہوں، عالموں کے لیے تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا علامہ صاحب، تھوڑا ہم کو بتا دیجیے کہ اگر کوئی انسان اگر وہ طالب علم ہے، علم حاصل کر رہا ہے، تو آپ کے حساب سے یا تو بھائی وہ مقلد بنے گا یا تو بنے گا مجتہد، باقی تیسری کوئی اور صورت نہیں ہے۔ نہ تو وہ متبع سنت بنے گا، نہ ہی وہ اہل سنت بنے گا، وہ سیدھے بنے گا خالی یا تو مقلد اور یا تو مجتہد۔ آپ کو پتہ ہے اصحاب الحدیث اور متبع سنت کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ کن کو قرآن میں کہا جاتا ہے؟ بھائی میں تو نہ بھائی میں مقلد ہوں، نہ ہی بھائی میں مجتہد ہوں، میں متبع سنت طالب علم ہوں۔ رکو اگر تمہارا عالم جس نے تمہاری بنیاد ڈالی ہے، نذیر حسین دہلوی صاحب، وہ فرماتے ہیں
پھر جھوٹ بولا انہوں نے کب بنیاد ڈالی؟ اہل حدیث جماعت تو تب سے جب سے اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے. سنو اس کو لامذہب بد مذہب یا لکڑ ہضم یا لادی ہضم کہو یا پتھر ہضم کہو یا ہضم کہو، جو مختلف نہ ہو مجتہد نہ ہو. اچھا خیر آپ نے کاہے کے لیے فون کیا تھا یہ بتائیے؟ یہی پوچھنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ایک کیا کہتے ہیں مجتہد کو کتنا علم ہونا چاہیے؟ اب یہ سب آپ لوگ کو زیادہ پتا ہوگا بھائی. ہاں آپ کو جو نزول حدیث ہوتا ہے نا، جب حدیث کا نزول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ آپ لوگ کو زیادہ پتا ہوگا بھائی. تو وہی میں کہہ رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں. آپ نے کہاں بولا کہ میں اصحاب الحدیث؟ آپ کو زیادہ پتا ہوگا علامہ صاحب، آپ حنفی مقلد ہیں نا، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. الحمدللہ. یہ بتائیے نا آپ کیا آپ مجتہد ہو کہ مقلد؟ میں تو متبع سنت ہوں. متبع سنت صحابہ تھے. خالی صحابہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں، باقی کوئی سنت پہ عمل نہیں کر سکتا. تو وہ بخاری اگر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہوں تو یعنی کہ میں سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں صحابہ کے بعد بخاری پڑھی ہے کیا؟ کیا انہوں نے بخاری پڑھی ہے کیا؟ ابے جاہل آدمی ہو کیا؟ صحابہ کی بات، جاہل آدمی میں صحابہ سے بات یہ کہ اس کو بخاری میں جمع کیا گیا ہے. اگر ایسے قیاسی سوال کرنا ہے تو ہم بھی پوچھیں کیا صحابہ حنفی تھے کیا؟ ہاں صحابہ حنفی تھے. صحابہ نے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا امام بنایا تھا؟ صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، کیا تھے صحابہ؟ صحابہ نے کبھی بھائی یہ کیا بولتے ہیں مطلب بھائی یہ در مختار پڑھی؟ میں بات سن. صحابہ نے کبھی در مختار پڑھی، ہدایہ پڑھی، تترخانیہ پڑھی، فتاوی عالمگیری پڑھی، صحابہ کے فقہ الاکبر پڑھی؟ صحابہ کے دور میں شائستہ تھی. تو وہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا، آپ ایسی بات بچوں والی سوال کرتے ہو. کیا ہم نے مطلب آپ کو علامہ بول کے عزت کیا دے دی؟ جھوٹ موٹ مطلب کیا؟ آپ نے تو اپنے آپ کو اصلیت میں علامہ سمجھ لیا. سب چیز کا علم ہے، آپ کو سب چیز کا علم ہے کیا بھائی؟ ہم نے آپ کو علامہ کیا بول دیا؟ آپ تو واقعی اپنے آپ کو علامہ سمجھنے لگے. میں کہہ رہا ہوں آپ کو سب چیز کا علم ہے کیا؟ ہاں مجھے بھائی فضائل اعمال کا، بہشتی زیور کا بہت زیادہ علم ہے. میں کہہ رہا ہوں علم ہے. آپ کو سکھاؤں بہشتی زیور؟ آپ کو سکھاؤں بہشتی زیور؟ ارے بھائی قرآن پہ آنا، تیرا دعویٰ ہے قرآن و حدیث، وہاں کہاں جا رہا ہے؟ میرا دعویٰ ہے نا، لیکن آپ تو حنفی مقلد ہو نا، آپ کے لیے امام کا قول، امام کی رائے حجت ہے. چل تقلید کی تعریف کر لو. کی تعریف کیا ہے تقلید کی؟ بھائی تقلید کرتا کون ہے؟ کیا ہم کہہ رہے ہیں بھائی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تقلید کی تعریف کرو، تقلید کرتا کون ہے؟ کیا ارے بھائی تقلید نہیں کرتا ہے کیا؟ بھائی میرا دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کی تقلید نہیں کرتا، سب غیر مقلد ہیں. تو تقلید نہیں کرتا ہے؟ ارے میں کیا آپ بھی نہیں کرتے؟ کوئی نہیں تقلید کرتا ہے، سب غیر مقلد ہیں. بولا نا بھائی. سن لے بھائی، آپ نے ابھی کہا ہے کہ تقلید کہتے ہیں بنا دلیل بات کو مطالبہ مان لینا. میں نے نہیں کہا بھائی، کیوں میرے اوپر جھوٹ بولتے ہو؟ یہ تو آپ کے حنفی اصول کی جو بھائی کتابیں ان میں تعریف لکھی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا. ہماری تعریف ہے یہاں کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی، اس عمل کا نام بھائی تقلید ہے، جو ایک تکلیف بن چکی ہے تمہارے لیے. ثابت ہو جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو. یہ سب میرے بھائی الفاظ، یہ میرے بھائی کون سی میرے بھائی آپ نے کتاب میں پڑھا ہے؟ یہ پتہ نہیں ہے. نہیں، یہ جو آپ الفاظ اپنے آپ سے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، جھوڑ رہے ہیں، یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ تو میں نے میرے بھائی آپ سے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میں. اشرف علی تھانوی صاحب کے نزدیک تو بھائی کتاب و سنت کی بات کو ماننا وہ بھائی تقلید ہے ہی نہیں. اور آپ لوگ کہتے ہو میرے بھائی وہ مطلب بھائی بخاری پڑھ لو تو تقلید کر رہو، مسلم پڑھ لو تو تقلید کر رہو، ابو داؤد پڑھ لو تو تقلید کر رہو. اور آپ کے اشرف علی تھانوی صاحب نے آپ کے منہ کو پہلے تماچا مار دیا ہے کہ بھائی کتاب و سنت کی بات کو ماننا تقلید نہیں ہے. اور کیا تو نے بولا غیر نبی، کسی غیر نبی کی بات کو بلا مسلمان کو دلیل مان لینا، اس کو تقلید کیا؟ بھائی کان میں سانڈے کا تیل ڈال کے تعریف ایک بار پھر سے آپ سنیے. کس نے کہا؟ کسی بھی غیر نبی کی بات کو
बिना दलील के, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस बात को बिना दलील के मान लेना, ये तकलीद है। अच्छा, और अच्छा, ऐसी तकलीद दुनिया में कोई नहीं करता, सब गैर मुकल्लिद है। एक बात सुन ले भाई, एक बात सुन ले, मैं तेरे को कह रहा हूँ, जो आप अपने आप को मुकल्लिद साबित कीजिए ना, तभी तो आगे बात होगी। जब आप मेरे भाई खुद ही गैर मुकल्लिद हो, तो आप फर्जी बातें क्यों कर रहे हो? अरे भाई, तू कुरान को चैलेंज कर रहा है। कुरान कह रहा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला ताअलमून। तो कुरान ने क्यों कहा है? कुरान अल्लाह ताला को मालूम था, जुबान में। अब इस आयत से भागोगे तो नहीं, जिन तो नहीं जाएगा। अब इस आयत से भागोगे तो नहीं। अरे भाई बात सुन ले, वो कह रहे हैं आपने आयत पेश की कि जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो। हाँ ठीक, तो मतलब आपने इस आयत से कयास कर लिया कि हाँ, मतलब इस आयत से मतलब है कि भाई तकलीफ करना। अगर उसका मतलब क्या है, अगर तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब क्या है? दुनिया में सारे आलिम नहीं है। नहीं, इस आयत से आपने क्या मसला लिया? आपने क्या मसला लिया तकलीफ करने का? आपने क्या मसला लिया तकलीफ करने का? और क्या है, और क्या है? चलिए हम आपके माने पे बात करते हैं। आपने माना ले लिया कि भाई जो चीज तुमको ना मालूम हो वो अहले जिक्र से पूछ लो, यानी कि आपने इसमें अपनी नाक की शक्ल से डाल दिया कि हाँ भैया तकलीफ करना है। तो अब ये बताइए, किसी से कोई चीज पूछना यानी कि पूछना इल्म हासिल करना होता है, तालीम हासिल करना होता है, ये भाई तकलीफ करना नहीं होता है। चुप 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 चुप, बिल्कुल मुंह पे उंगली रख। चुप, अब मैंने तेरी मुंडी पकड़ ली है, तू भागेगा नहीं, बिल्कुल चुप। मेरी बात सुन, उसके बाद आराम से बोलना। तुमने जो झूठ बोला कुरान की आयत के ऊपर कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो वो अहले जिक्र से पूछ लो, तो पूछना तो इल्म हासिल करना है ना, पूछना तकलीफ कहाँ है? और मान लो तुमने किसी पान वाले से भाई कोई एड्रेस पूछ लिया कि हाँ भाई ये फला एड्रेस क्या है, तो क्या पान वाले को तुमने अपना इमाम बना लिया? मतलब क्या है? माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, हनफियत को अपने उसूल से खारिज हो गई, पान वाले को अपना इमाम बना लोगे? अरे बेवकूफ, तकलीद का आपने फिरोजुल लुगात पढ़ी है? अब आप भागिए मत। आपने जो कुरान का मनमाना इस्तेमाल किया है, कुरान के ऊपर बहुतान झूठ बांधा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला भाई साफ कुरान में कह रहा है, हाथु बुरानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सबूत दो, दलील दो। क्या कहता है कुरान? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि तुम उनसे सबूत मांगो, दलील मांगो, और तुम कह रहे हो कि बिना दलील की तकलीफ कर लो। कुरान की आयत पढ़ना, कुरान की आयत पढ़ना। बस मैं एक ही बार पढ़ता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे भाई हुज्जत नहीं है अरबी। अब जल्दी से ये बताओ कि अगर तुम कहीं रास्ते में जा रहे हो, तुम्हें कोई जमादार मिल गया, तुमने उससे कोई पता पूछ लिया, यानी कि जमादार को तुमने अपना इमाम बना लिया। सुन ले बात। तुम्हारे नजदीक किसी से पूछना मतलब उसको अपना इमाम बना लेना, मुजतहिद बना लेना, उसकी तकलीद कर लेना, यानी कि जमादार भी तुम्हारा इमाम हो गया। इतने शर्म की बात है फिरोज देवबंदी साहब, जाके डूब मरिए चिल्लोवर पानी में आप। अरे बेवकूफ, सुन ले, माने होता है नकल पे उतारना, तो नहीं पढ़ा है कहीं? भाई तकलीद का एक ही माना होता है इस्तिलाही, ठीक? लुगत में तो इसका माना होता है पैरवी करना, या मतलब भाई जो ये अल्फाज है भाई ये कलादा से बना हुआ है, कलादा का माना होता है पट्टा, इंसान के लिए इस्तेमाल होता है तो गले का हार, जानवर के लिए इस्तेमाल होता है तो पट्टा, वो सब आप मेरे भाई इसको हटाइए साइड में। इस्तिलाही माना इसका क्या है कि किसी भी गैर नबी की बात को बिना दलील के मान लेना, ये सोच के कि उसके पास कोई ना कोई तो दलील होगी, उस अमल का नाम तकलीद है। तो ये तकलीद आप लोग करते नहीं हो, आप लोग खुद गैर मुकल्लिद हो। आप लोग मेरे भाई वक्त पड़े तो जमादार को अपना इमाम बना लोगे, वक्त पड़े तो किसी मेरे भाई गधे को अपना इमाम बना लोगे। तेरे को इतना ही आता है, बात तो सुन ले, बात अच्छे से कर ले, अगर तुम दम है तो आप बताइए ना कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो अहले जिक्र से पूछ लो। यहाँ तकलीद आपने कहाँ से मेरे भाई डाल दी? ये कौन सी मेरे भाई शरह में आपने पढ़ी, कौन सी भाई तफसीर में आपने पढ़ी? इसका मतलब और क्या है? फिर क्या इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो चीज तुमको नहीं आती है भाई वो जानने वालों से पूछ लो। पूछने का मतलब होता है इल्म हासिल करना, उनसे तालीम हासिल करो, तालिबे इल्म बनो, ना कि मुकल्लिद बनो। उसी को तकलीफ मुकल्लिद बनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ही नहीं। ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तालिबे इल्म बनने के लिए कहा है, इल्म हासिल करो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दीन का इल्म हासिल करना हर मोमिन औरत और मर्द के ऊपर फर्ज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वत्तबिउ सबीला मन अनाब इलैहि।
अरे आप पहले आयत से अपनी ना भागिए, आपने जो भी आयत पढ़ी यही आप लोग की मेरे भाई एक नंबर की मतलब ये जहालत है, मेहनत की तरह खाली उछल करते रहते हो, कभी इस आयत पे कभी उस आयत पे, कभी इस आयत पे कभी उस आयत पे। जूनागढ़ी के तर्जुमे ये वही सेम है। अरे आप जूनागढ़ी को छोड़िए मेरे भाई, आप अशरफ अली थानवी साहब के तर्जुमे में बात कर लीजिए कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो अहले जिक्र से पूछ लो, जानने वाले से पूछ लो। तो जानने वाले से अगर पूछेंगे तो उससे जानकारी हासिल करेंगे ना, यानी कि इल्म हासिल करेंगे। तो इसमें मेरे भाई तकलीफ कहाँ से हो गई? सुन तकलीफ की तारीफ, तकलीफ कहते हैं भाई तकलीफ कहते हैं तकलीफ को, तकलीफ जो आपको तकलीफ हो चुकी है, पता नहीं भाई ये तकलीफ है क्या, खिलौना है, झुंझुना है जिसको मुकल्लिद बजाता रहता है। के पास तवातुर के साथ पहुंचा हो उसको सबसे कहते हैं। अरे तवातुर छोड़ो, तुम्हारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक एक मसला तुम बासनद नहीं पहुंचा सकते और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हो। क्या पहुंचा सकते हो? एक मसला इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक तुम सही सनद से भाई तुम नहीं पहुंचा सकते। मैं बुखारी से साबित कर दूंगा सही हदीस। अरे चलो ठीक है, तुम साबित कर दोगे। चलो सुनो, तुम्हारी मेरे भाई तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में आता है कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है, और कुत्ते की खाल को रंग के सुखा के नमाज बिछा के उस पर नमाज पढ़ना जायज है। अब ये तमाम मसलों की बिल्कुल भाई सनद इसको अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक पहुंचा दो। मैं आज हनफी मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ। सुन ले बात सुन ले। नहीं आप माशाल्लाह अपने इमाम के तलवे चाटने वाले आदमी हो ना, चलो अपने इमाम तक एक मसले की सनद पहुंचा दो। जुदैर अली ज़ई के कुत्ते बोल क्या मेरे भाई गाली गलौज करने लगे, अब तुम्हारी दुम पे पैर मार दिया, मेरे भाई फड़फड़ाने लगे। और क्या तू? इसीलिए मैं कहता हूँ पहले इल्म हासिल करो, बाद में मेरे भाई बात किया करो ना। आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, मतलब अहले हदीसों से इल्म हासिल करते और अहले हदीसों से होशियारी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तू कुरान की एक आयत सही पढ़ेगा मैं गैर मुकल्लिद बन जाऊंगा। अरे कुरान की आयत तुम छोड़ो, तुम अपने इमाम को कॉल पेश करो। तेरा दावा तुम्हारा दावा है खाली बेवकूफ, तुम्हारा दावा है भैया, तुम इमाम का कॉल पेश करो ना। क्या किस बात का? भाई आपकी दुर्रे मुख्तार में जो मसले लिखे हुए हैं, आप उनकी किसी एक भी मसले की सनद भाई अपने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक भाई तुम पहुंचा के दिखा दो। अगर हमने कर दी फिर क्या करेगा? भाई मैं अभी 100 लोगों को साथ में लेके हनफी देवबंदी बनने के लिए तैयार हूँ, फौरन इसी कॉल में। अगर नहीं बना तो? अगर मैं ना बना तो भाई मैं समझ लो दुनिया का सबसे मतलब बदतरीन जानवर, कुत्ते की मौत में मर जाऊं। ठीक बोल। कौन से मसले की सनद पेश करनी है? हाँ, आपको एक मसले की सनद पेश करनी है कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है, कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है, और कुत्ता की खाल को रंग के सुखा के उसके ऊपर भाई नमाज पढ़ना जायज है। इन मसलों की सनद पूरी चेन आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तक भाई पहुंचा दीजिए। मैं आज हनफी मुकल्लिद बनने के लिए तैयार हूँ। तू पागल है, तो सुन ले, इमाम बुखारी के नजदीक कुत्ता पाक है, अब क्या करेगा? कहाँ पाक है? चल दलील दे। अगर मैंने दलील दी, अगर मगर छोड़ तो अभी दलील दे। मैं कहता हूँ अभी दलील दूंगा अल्लाह की कसम। अरे तो दे ना। बोल तू क्या करेगा फिर? अरे करूंगा क्या? कुछ नहीं करूंगा। इमाम बुखारी पर क्या फतवा लगाएगा? बोल जल्दी। अबे ये जो तू ये मुफ्ती सालिम खान की शादी का वीडियो देख के जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के ऊपर इल्जाम लगा रहा है, तेरा बाप भी नहीं साबित कर पाएगा। झूठ पर अल्लाह की लानत हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। चल मुझे बता दे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये कहाँ लिखा है कि जो कुत्ता है वो पाक है? अच्छा, बुखारी का शरह किसने लिखा है? बुखारी का शरह किसने? अरे वो बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो पहले कुत्ता पाक होने की दलील दे। मैं देता हूँ ना, जो मशहूर शरह है, जो शरह लिखा है बुखारी का, वो लिखा है। अरे तू मेरे भाई जल्दी दलील पेश कर, तू मेरे से सीखता है, बाद में मेरे से होशियारी करता है। अरे पागल, भाई तू बारी हो गई, बहुत सारी शरह है बुखारी की, तू उसको छोड़, तू ये बता कुत्ता खाना पाक है, ये कहाँ लिखा है? अगर मैंने फातवा बारी से दिया था करके फिर। अरे भैया जल्दी दे, तू नाटक बहुत करता है, तू बेवा औरतों की तरह मातम करने लगता है जहाँ मैं तेरी दुम पे पैर रखता हूँ। कर ले, रुक जा, एक मिनट मुझे किताब ढूंढने दे, रुक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने ये कहा कि कुत्ता पाक है। हाँ मैं दूंगा जवाब।
तुम लोग खुद कुत्ते हो, खुद कुत्तों को गोद में लेकर नमाज पढ़ते हो, खुद कुत्ते को सर पे रख के नमाज पढ़ते हो, खुद कुत्ते को पानी से मेरे भाई वजू करते हो, बातें बड़ी बड़ी मारते हो। पागल वहाँ, अरे पागल पप्पू खान जैसे इमाम बुखारी रहमुल्लाह के नजदीक जो कुत्ता था भाई वो नापाक है, नजीस है। सुन ले बात, ठीक है, बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले। और तुम कह रहे हो कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह के नजदीक कुत्ता पाक था। हद है मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ कुत्ते की खाल पाक है कि नहीं, ये बता। अभी तूने क्या कहा कि पूरा कुत्ता पाक है ना, अब भाग गया कुत्ते की खाल पाक है, फिर बाद में क्या कहा कि कुत्ते के दांत पाक है, फिर क्या क्या कुत्ते की जो दुम है वो पाक है। अबे तेरा पूरा मजहब मेरे भाई कयासी मजहब है क्या? पर इल्जाम लगाया है कि अबू हनीफा ने कहा है कि कुत्ते को उठा कर नमाज में पढ़ सकते हैं। पहले तो अपनी फतावा अहले हदीस देख लेता। फतावा अहले हदीस को तू साइड में रख। अहले हदीस के दो उसूल अतीउल्लाह अतीउर रसूल। हम कुरान को मानते हैं, अल्लाह के नबी के फरमान को मानते हैं, उनसे जो बात मिलती है उसको मानते हैं, उनसे जो बात टकराती है उनको दीवार पे मार देते हैं। अबे हम कोई मुकल्लिद थोड़ी ना तेरी तरह। भाई आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि कुत्ते के पिल्ले के मुंह को बांध के उसको बगल में दबा के गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। तो ये कौन से साहबी ने कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ा? जब तो तूने पढ़ी है कभी? कौन से सहाबा इकराम ने कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ा? मैं कह रहा हूँ क्या कभी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ा? अरे पागल कुत्ते तो तू है, मैं बोल क्या अशरफ अली थानवी साहब ने कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ा? अरे पागल वहाँ मसला है कि कुत्ते की जो खाल है वो पाक है, मसला वही है। अरे खाल पाक है तो कुत्ते को गोद में लेकर नमाज पढ़ लोगे? कुत्ते की खाल और कुत्ते की खाल पाक है, ये कहाँ लिखी हुई है? कहाँ लिखा है? क्या कहाँ लिखा है? क्या कहाँ लिखा है? ये फतवा आलमगीरी में लिखा है। नहीं, अगर मान लो कुत्ते की जो खाल का जो बाल है अगर वो तेरे पानी में डाल दूं तो वो भाई क्या तू वो पानी पी लेगा? किसमें? कुत्ते की खाल का भाई 2-4 बाल अगर मैं तेरे पानी में डाल दूं तो तू उस पानी को पी लेगा? मैं कह रहा हूँ वहाँ मसला नमाज का है। अरे खाल पाक है कि नापाक है ये मसला दूसरा है। वो सूखी खाल है या गीली खाल है वो उस बहस में ना जा। अगर पागल कुत्ते की सूखी खाल पाक है या भाई वो गीली, मैं मसले को वाज़ेह करूंगा। सूखी गीली का भी इसमें मसला है मेरी भाई। तू अकल से पैदल है, तू एक काम कर पहले इल्म हासिल कर किसी अच्छे आलिम दीन से। तू बात तो सुन, पूरी सुन, इसका जवाब सुन। जवाब नहीं, ये बता दो कौन से साहबा इकराम ने कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ा? एक साहबी का नाम बता दो। ये जो मसला लेके आए हो ये कौन सी भाई कुरान हदीस का भाई ये जूस है, निचोड़ है, कहाँ से लेके आओ? तुम्हारा दावा है ना कि हमारी फिका हनफी का हर एक मसला कुरान हदीस का जूस से निचोड़ है, तो कहाँ से इसको लेके आए? अगर मैंने तुझे साबित करके दे दिया। अरे अगर कर दिया मगर कर दिया, ये अगर मगर करता रह जाएगा तो कुछ नहीं साबित करेगा, फोन काट के भाग जाएगा। अरे पागल है तूने। अरे बाद में करना, दलील देना, हाथ कुरान को मिनकुम सादिकीन। पागल बात तो फटाफट सबूत पेश करो अपना। तुझे यही फुटफुट है, तुझे आता जाता अल्लाह की कसम कुछ नहीं है। मैं तुझे कह रहा हूँ अगर अरे कुत्ते को गोद में लेके नमाज कभी आपने पढ़ा? तू कपड़े धोता है पहले बोल। माशाअल्लाह आप इतने सालों से देवबंदी मसलक पे हैं, ठीक है, हनफी हैं, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नाम से जितने मसले मंसूब हैं, आपने कभी इसके ऊपर अमल किया? आपने कभी कुत्ते के पिल्ले को गोद में उठा के उसके मुंह के बांध के भाई वो नमाज पढ़ी? जिसके अबू दाऊद की हदीस पढ़ी तूने 4132। अरे हदीस हमारे लिए हुज्जत है ना, तुम्हारे लिए इमाम को कौल हुज्जत है। अरे पागल सुन ले, तुम्हारी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि जो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के कौल को रद्द करे उसके ऊपर रेत की बारिश हो, और तुम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के कौल को छोड़ के तुम हदीस पे भाग रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे पागल ये किस मसले में लिखा है कि तुम्हें इमाम का कौल नहीं छोड़ना है? किस मसले में? हर मसले में। ओ पागल किसने कहा? मसाइले इज्तिहाद में कि मसाइले मंसूसा? अरे मसाइले मंसूसा गैर मंसूसा ये सब कुछ नहीं है, अकीदे में भी उनका कौल नहीं छोड़ना है जाहिल। ये कहाँ लिखा है? अरे तुम्हारा अमल है ना, लिखा है। अरे यार तुम्हारा दावा है कि हम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हैं, तो मुकल्लिद का माना क्या हुआ कि जो हमारे इमाम करेंगे वैसा ही हम करेंगे। तो या तो आपके इमाम ने कुत्ते को भाई को गोद में लेके नमाज पढ़ा है तो आप भी नमाज पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप भी ना पढ़िए।
सुन ले, तूने तालिबुर रहमान की किताब पढ़ी है? अरे तालिबुर रहमान आपके लिए हुज्जत नहीं है। आपको मैं इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से भागने नहीं दूंगा। आप करते हैं तकलीद शख्सी, यानी कि एक शख्स की तकलीद। तो मैं आपको इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से भागने नहीं दूंगा। मसाइले गैर मनसूस है, न कि मसाइल मनसूस। हाँ, तो कुत्ते को गोद में लेके भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है तो ये मसाइले भाई ये गैर मनसूस है। तो आपने कभी मेरे भाई कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ा? अब मैं बोल रहा हूँ, तो अबू दाऊद की हदीस खोल ले। अबू दाऊद को आप छोड़िए, आपके लिए हदीस हुज्जत नहीं है। मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस का कोई लेना देना नहीं है। आप देवबंदी हो ना, तो आप ही के मौलाना महमूदुल हसन हनफी देवबंदी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों का कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए इमाम का कौल, फुका की राय, उनका कयास हुज्जत है। भाई जल्दी बताइए ना। मैं पप्पू खान कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना कौन सी कुरान की आयत से साबित है, या कौन से अल्लाह के नबी की हदीस से साबित है, या कौन से अमल सहाबा से साबित है? मैं कह रहा हूँ हदीस खोलना अबू दाऊद की। अरे मैं क्यों खोलूं भाई, दलील तुम दे रहे हो, तुम खोलो। मैं बोल रहा हूँ हदीस खोल दे अबू दाऊद की। अरे ये सब बच्चों वाली बात मेरे भाई बंद करो कि इसको खोलो, उसको बंद करो, उसको देखो, उसको झाँको, उसको चाटो, उसको लगाओ, ये सब बात खत्म कर दो भाई। कब तक कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ते रहोगे? कुत्तों का पीछा छोड़ दो मेरे भाई, इंसान बनो, इंसान। सुन ले अब बात, कुत्ते की खाल साफ है कि नहीं? जब वो तेरे कपड़ों से लगती है तू कपड़े चेंज करता है। कुत्ते की खाल पाक है कि नापाक है, ये मेरा टॉपिक ही नहीं है। हाँ, तो वहाँ तो मसला नहीं खाल का है। खाल का मसला क्या है? अच्छा ये तो भीगा कुत्ता हो, नहीं अगर कोई भीगा कुत्ता हो, क्या उसको गोद में लेके नमाज पढ़ लोगे? किसका? अगर कुत्ता मेरे भाई भीगा हो, गीला कुत्ता हो, तो क्या उसको गोद में लेके नमाज पढ़ लोगे? अरे पागल, ये मसला दिया है कुरान और हदीस से। अरे खाल ने, तुम खाल पे जा रहे हो ना, तो अगर कुत्ते की खाल गीली है तो वो नापाक है कि नहीं है? कहाँ लिखा है वो नापाक है? अरे मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, नापाक है कि नहीं? अच्छा नहीं है, कहाँ लिखा है नापाक है? नापाक नहीं है। उसमें अगर उसको मतलब गंद गलाजत ना लगी हो तो वो फिर नापाक है, अगर नहीं लगी हो तो वो पानी लगाओ तो वो कहाँ नापाक है? यानी कि कुत्ता अगर कुएं के अंदर भाई वो डूब जाए, लेकिन उसका जो मुंह है, अगर भाई वो मुंह ना डूबे, तो ऐसे पानी से वजू करना जायज है आपके हनफी मसलक में। यानी कि गीला कुत्ता भी आपके वहाँ पाक है। तो एक काम करो ना, कुत्ते को नहला के चाट लिया करो ना सीधे। अगर कुत्तों से इतना प्यार है, इतना ही पाकीज़ा है तुम्हारे वहाँ, तो कुत्ते को चाट लिया करो। उसको शैम्पू से साबुन से नहला के खूब चाटा करो कुत्ते को। मैं कह रहा हूँ अबू दाऊद और नसाई खोल ले। अरे मैं कुछ नहीं खोलूंगा मेरे भाई, तुम मेरे को दलील दो पहले। मैं कह रहा हूँ पागल है तू। मैं कह रहा हूँ वहाँ खाल का मसला है, कुत्ते की जो खाल है वो पाक है। उसमें खाल का मसला ही नहीं है, उसमें साथ साथ लिखा हुआ है कि कुत्ते के पिल्ले का के मुंह को बांध के गोद में लेके नमाज पढ़ना दुरुस्त है, जायज है। नमाज का मसला है, वहाँ खाल का मसला नहीं है। अरे पागल यार, मतलब तुम लोग का क्या कयास है यार? मतलब अपनी गंदी संधी मेरे भाई इबारतों का दिफा करने के लिए इतना झूठ बोलने लगते हो, इतना कयास करने लगते हो, इतना बोतान बांधने लगते हो कि कोई हद नहीं है। बुखारी फरमाते हैं, इमाम बुखारी फरमाते हैं, इमाद ने कहा मुर्दार परिंदे के पर में कोई हर्ज नहीं है। बुखारी बाबुल यकाम। अच्छा, मतलब जो कुत्ता है ये परिंदा हो गया तुम्हारे नजदीक? वाह वाह, क्या खाली दिमाग है देवबंद वाले। अरे पागल तू सुन ले ना, तू सुन ले। और जहरी ने कुत्ता परिंदा हो गया तुम्हारे वहाँ? जो उड़ने वाले कुत्ते होते हैं ना कि मुकद्दिमीन उलमा को पाया वो इससे कंगी करते थे और इसमें तेल रखते थे और उसमें कोई हर्ज नहीं समझते थे। इमाम बुखारी नकल करते हैं और इब्न सीरीन और इब्राहिम ने कहा है हाथी के दांत की तिजारत में कोई हर्ज नहीं है। समझता है तू? वो भी जानता है फिर तो फुगान भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, आम का जवाब आप दे रहे हो, इमली का। बात हो रही कुत्ते की, इमली का, परिंदे की नहीं हो रही है। ये इमली कुत्ता क्या आपके वहाँ उड़ता है? उड़ने वाला जानवर है कुत्ता आपके नजदीक? तो आज के बाद जब आप खेलिएगा ना, चिड़िया उड़ मैना हो, तो कहिएगा कुत्ता उड़। ने मुश्किल से वुजू करने का इरादा फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि ये मुर्दार जानवर का है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसको दबागत देने से इसकी गंदगी, नजासत और पलीदी दूर हो जाती है।
इब्ने खुज़ैमा की हदीस है। अरे खाल का मसला अलग है, मैं खाल और चमड़े पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। पागल आदमी, तू मेरी बात ध्यान से सुन। वो पागल, मैं सवाल कर रहा हूँ कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ने का। नमाज एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत है। वो सुन ले पागल। इबादत के लिए हमें कोई मजबूत दलील चाहिए। क्या कभी अल्लाह के नबी ने कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेके नमाज पढ़ा? अरे पागल, बात सुन ले। वहाँ खाल का मसला है, कुत्ते की खाल का मसला है। असल मकसद है खाल। कुत्ते की खाल पाक है कि नहीं? कुत्ते की खाल पाक है। अबे ये किस जाहिल ने कहा कुत्ते की खाल पाक है कि ना पाक है? क्या मसला है? तेरा बाप जब हनफी था दुर्रे मुख्तार में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। तो जैसे मेरे भाई रुको में जाओगे कुत्ता तो तुम्हारा भाई वो नीचे भाई दुर्रे मुख्तार। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर बहुत सारे पेज नंबर है भाई। बोलना बेवकूफ। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 212 है 328 ना एक बोल 128 उधर क्या लिखा है? 102। ये चारों पेज जाके खोल के देख लेना। कुत्ते के पिल्ले के मुंह को बांध के उसको गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ते की खाल को रंग के सुखा के जानमाज बना के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल का अगर तुम दबागत और मतलब साफ करोगे, क्या उस पर तो नमाज नहीं पढ़ सकता? मैं कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ने की दलील मांग रहा हूँ भाई। इतनी देर से तुम क्या मेरे भाई भांग खा के फोन करते हो क्या? शैतान खबीस, सुन मेरी बात सुन। नहीं चलिए हमने मान लिया बहस के तौर पे कि हनफियों के नजदीक कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। तो आप एक काम कीजिए, आप अपने मोहल्ले का कोई कटियल खुजली वाला कुत्ता पकड़िए और उसको अपनी गोद में लेके नमाज पढ़िए और वीडियो अपना बना के हमको भेजिए। तब हम समझेंगे कि जो ये फिरोज देवबंदी है ये वाकई हनफी मुकल्लिद है। ठीक है।